Namaskar, I am Anand and you are watching Join for Education. Today I am going to solve a numerical problem of exercise 1.1. Name of the chapter is Electric Charges and Fields. Subject is Physics and class is 12 and textbook is NCERT textbook. नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज मैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र नामक अध्याय विषय भौतिकी कक्षा 12 का एक आंकिक प्रश्न हल करने जा रहा हूं। आइए सबसे पहले आंकिक प्रश्न को देखते हैं। Check the ratio Ke squared by G, mass of electron into mass of proton is dimensionless. Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि आप के ई स्क्वायर बाय जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन के रेशियो को जांच कीजिए और देखिए कि ये डायमेंशन लेस है। इसके लिए आप फिजिकल कांस्टेंट का जो टेबल दिया हुआ है उस टेबल से वैल्यू डिटरमाइन कीजिए इस रेशियो के लिए और ये भी स्पष्ट कीजिए कि व्हाट डज रेशियो सिग्निफाई, ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। Hope that there is no problem to understand the question. In this question asks us this ratio is the dimensionless. To get the value of K, G, mass of electron, mass of proton and charge on electron, you take the help of table of the physical constant. Also ask us signify what does say the ratio Ke square by G me mp. Here K is the electrostatic constant, E is charge on electron, G is the gravitational constant, this is me is the mass of the electron and mp is the mass of the proton. So there is no problem to understand this question. Let's start to solve this question or this numerical problem of physics. So this is the first step. We know that K, it means that electrostatic constant according to the Coulomb's law, Coulomb के नियम से हम जानते हैं कि K equal to F R square by Q1 into Q2. Now we putting the dimension of all of these physical quantities. Dimension of F is m L T to the power minus 2 and the dimension of R is L square. So simultaneously the dimension of Fr square is m L Q T to the power minus 2 and the dimension of Q is E into Q2 is also E, therefore dimension of Q1 into Q2 will be E square. तो हम लोग ये देखते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और कूलम्ब के नियम से इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का वैल्यू एफ आर स्क्वायर, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड Q1 एंड Q2 पॉइंट चार्ज है। तो जब इसके हम डायमेंशन को पुट अप करते हैं, फर्स्ट का डायमेंशन एम एल टी टू द पावर माइनस 2 होता है और डिस्टेंस का डायमेंशन एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल की टी टू द पावर माइनस 2 और चार्ज का डायमेंशन ई होता है तो Q1 का डायमेंशन ई होगा, फिर Q2 का डायमेंशन ई होगा। इस तरह से Q1 इंटू Q2 का डायमेंशन
ई स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम जानते हैं कि G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर, और ये mass of the first body and mass of the second body. So according to the gravitational constant G equal to Fr squared m1 into m2 are the mass of two body and F is the gravitational force. तो फिर यहाँ पर एफ आर स्क्वायर का अगर हम डायमेंशन पुट करेंगे तो जस्ट लाइक ये हो जाएगा एम एल क्यू टी टू द पावर -2, एंड वी नो दैट dimension of mass is m, so the dimension of m1 will be m and the dimension of m2 will be m, therefore m1 into m2 will be m square. अब यहाँ पर let's see in this question. First of all we find out k by g, so we write down here the value of k is this one and g is this one, by it means that division. तो y का मतलब डिवीजन होता है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं। यहाँ पर k का वैल्यू दिया हुआ है, फिर यहाँ डिवीजन कर दे तो ये g का वैल्यू हो जाएगा m l क्यू और फिर t टू द पावर -2 बाय m स्क्वायर। जब ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाए तो ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हमको आ जाएगा k बाई जी इक्वल टू m स्क्वायर बाय ई स्क्वायर। नो therefore k e square by g mass of electron into mass of proton, क्योंकि इसी का रेशियो पूछा जा रहा है, तो k by g का वैल्यू हम ये पुट कर देंगे m स्क्वायर बाय ई स्क्वायर जो यहाँ पर पुट किया गया है, और फिर हमारे पास बच जाता है ये ई स्क्वायर, तो इसी ई स्क्वायर को पुट कर दिए। उसके बाद मेरे पास बच जाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। So we know that the dimension of mass is m, so mass of electron will be m and the dimension of mass of proton will be also m, so this one will be m into m equal to m square. अब यहाँ पर आप देखते हैं तो ये और ये कैंसल्ड आउट हो गया, ये और ये कैंसल्ड आउट हो गया, तो ये तो आपका हो गया डायमेंशनलेस। सो k e square by g me into mp is dimensionless. फ्रॉम वर्किंग इट इज़ क्लियर दैट, यहाँ पर जो वर्किंग की है उससे ये स्पष्ट पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इनटू चार्ज का स्क्वायर बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो आएगा वो डायमेंशनलेस हो जाएगा। फिर हम लोग ये वैल्यू पुट अप करते हैं, ऑलरेडी इसको हम लोग फाइंड आउट कर दिए। तो टेबल से k का जो वैल्यू है आपका 9 इंटू 10 टू द पावर -9, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। चूँकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग फिर स्क्वायर लगा देंगे, और फिर g का वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। ये सारा का सारा जो है वैल्यू आपका एसआई सिस्टम के यूनिट में लिखा गया है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 2.29 इंटू 10 टू द पावर 30। अब यहाँ पर कंपेयर कर देते हैं, तो कंपेयर करते हैं तो द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल force is 2.29 into 10 to the power 39. So this is the answer. तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल सॉल्यूशन
को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि आपको कोई दिक्कत हुआ है तो आप इसको हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उस एरर को दूर करने का प्रयास करूँगा। फिर मेरा अगला वीडियो लेक्चर जो है इसी चैप्टर के एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए मैं विदा लेने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ। मेरा एक ब्लॉग भी है जो anandprajapati.blogspot.com के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। इस ब्लॉग में आपको क्लास 9 से 12 तक के बहुत सारे स्टडी मटेरियल है, जिसका उपयोग आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में या फिर नीट या जी के प्रिपरेशन में कर सकते हैं। हमारा एक फेसबुक पेज भी है जॉइन फॉर एडुकेशन के नाम पर, वहाँ पर भी आप विजिट करके वहाँ से भी आप स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप में एक ग्रुप भी चलता है जॉइन फॉर एडुकेशन के नाम पर, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में जनरली या सामान्यतः मैं जी नीट और 9 to 12 का स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में पोस्ट करता हूँ, तो आप यहाँ से भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व किए और प्रयास किए कि ये कक्षा 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो, फिजिक्स के श्रोताओं के लिए उपयोगी हो जो फिजिक्स में रुचि रखते हैं। तो मैं आनंद आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। So I Anand, thanks to all of you to stay with me till the last details of this solution. Hope that this solution will be useful to the students who are studying in class 12 together with the spectators or audience who are interested in physics. So once again, I thanks to all of you. Thank you very much. My next video lecture will be related to the one more solution of the numerical problem of this chapter. Thank you very much.